کراچی کی کئی اہم سڑکوں پر اب رکشے داخل نہیں ہو سکتے۔ کمشنر کراچی نے 2 مہینے کے لیے پابندی لگا دی۔ شاہراہ فیصل سے آواری، آئی چندریگر روڈ سے ٹاور اور شاہین کمپلیکس تک بھی پابندی۔ شاہراہ قائدین سے نمائش نرسری، شیر شاہ سوری روڈ سے ناگن چرنگی، شہید ملت روڈ سے شہید ملت ایکسپریس وے پر بھی پابندی۔ عبداللہ ہارون روڈ سے خیابان اقبال، دو تلوار سے عبداللہ شاہ غازی، اسٹیڈیم روڈ سے نیو ٹاؤن تھانے، سر شاہ سلیمان روڈ سے کار ساز تک بھی پابندی۔ پابندی کے باوجود پلاسٹک بیگ کا استعمال دھڑلے سے جاری۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا قانون کی خلاف ورزی پر بڑا کریک ڈاؤن۔ محکمہ اینٹی انکروچمنٹ نے 9 ٹن تھیلیاں ضبط کر لی۔ عمار خان بولے محکمہ ماحولیات سے تجاویز لے کر پلاسٹک بیگز ضائع کریں گے۔ اس حوالے سے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک تو شعبہ آپ لوگوں کا شکریہ ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، بیسکلی ہمارا جو یہ کارروائی ہے اس کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ نے اپروکسیمیٹلی 5 ٹنز تو ہم نے بائی 24 آورز کر لیے تھے۔ ابھی وی ہیو کراسڈ اباؤٹ 9 ٹنز بائی ناؤ اور ابھی ہمارا ایکشن چل ہی رہا ہے۔ ہم لوگ جہاں پہ کاروائیاں کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ویئر ہاؤسز کو بتا بھی رہے ہیں کہ اگر دوبارہ ہمیں مال ملا تو آپ کو کورٹ آف لا کے اندر آپ کے کیسز ہوں گے، FIR کٹی جائے گی اور آپ کو پھر سخت سے سخت سزا دلانے کی ہماری پوری کوشش رہے گی۔ ہم یہ آگاہ کر رہے ہیں اور پبلک کو بھی اویئر کر رہے ہیں اس پہ کہ پلیز جہاں تھیلی مل رہی ہے ہمیں اس کے بارے میں بتایا بھی جائے۔ ابھی بھی کوئی جو دکاندار ہیں اور کوئی بھی سٹورز ہیں یا کوئی بھی لوگ پلاسٹک کی تھیلی کو چلا رہے ہیں تو پلیز ابھی تک اگر ہماری ٹیم آپ تک نہیں پہنچی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ خود ہی سرنڈر ان کو کر دیں ہمارے کسی بھی سٹور میں جا کے۔ عوام کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں کچھ مل رہی ہے تو پلیز ہمیں کمپلین دے دیں سو دیٹ ہماری کارروائی سخت سے سخت ہوتی جائے اور پلاسٹک سے ہم کراچی کو پاک کریں۔ دیکھیں ابھی اس کا ہم لوگ ٹوٹل جو ہے ہماری ابھی تو کارروائی چل رہی ہے، ساری کلیکشن کرنے کے بعد ہماری گوڈاؤن میں جیسے ابھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہیڈ آفس میں، تو یہاں پہ جتنا پڑا ہے اسی طرح ساری ڈسٹرکٹس کے پورے آل اوور کراچی 6 ڈسٹرکٹ 7 ڈسٹرکٹس میں سارے سٹورز میں جمع ہوا ہے۔ پھر اس کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے اور انوائرمنٹ کو ہم پوچھا جائے گا کہ واٹ از دا بیسٹ وے کہ اس کو ہم کس طرح ہم لوگ جو ہے ختم کر سکتے ہیں اور اسے گیٹ ریڈ آف اٹ کیا تاکہ انوائرمنٹ میں کسی قسم کا امپیکٹ نہ آئے۔ اس کے بعد ہم آگے جو ہے جو اس کی کارروائی ہوگی جو انوائرمنٹ والے ہمیں۔ صفورہ ٹاؤن کا نئے مالی سال کا بجٹ حتمی مراحل میں داخل۔ ٹاؤن چیئرمین نے ترقیاتی لحاظ سے اگلا سال بہتر ہونے کی نوید سنا دی۔ تمام محکموں سے ٹیکس ریکوری بڑھانے کی اپیل۔ راشد خاص خیلی کی زیر صدارت اجلاس، وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ کی بھی شرکت۔ میونسپل کمشنر امجد پتافی اور دیگر محکمہ جاتی افسران بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ ایک ایسا بجٹ پیش کریں گے جو ترقیاتی لحاظ سے بہتر ہو۔ صفورہ ٹاؤن کے مالی سال 2025-26 کا بجٹ حتمی مراحل میں داخل۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی صدارت میں اجلاس میں وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ، میونسپل کمشنر امجد علی پتافی سمیت محکمہ جاتی افسران کی شرکت۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے کہا کہ لوکل ٹیکس ریکوری بڑھانے کے حوالے سے محکمہ جات اور ہر صورت اپنا کردار ادا کریں، ایسا بجٹ پیش کریں گے جو ترقیاتی لحاظ سے بہتر ہو۔ مجبوری ہے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے بجٹ کو کم نہیں کر سکتے۔ صفورہ ٹاؤن سمیت دیگر ٹاؤنز کا تنہا ہوں اور اس سے متعلقہ اخراجات کا حجم دیگر اخراجات سے زیادہ ہے۔ ترقیاتی لحاظ سے آئندہ مالی سال بہت بہتر ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں دوسرے دن بھی بجٹ پر بحث کے دوران شور شرابہ، ہنگامہ اور بد نظمی۔ سعدیہ جاوید کی تقریر کے دوران MQM ارکان کا شور اور اعجاز سواتی کی تقریر کے دوران PTI کے حامی آزاد ارکان شور کرتے رہے۔ بعض ارکان کی ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس کا دوسرا دن 28 ارکان نے بجٹ پر بحث کے دوران خطاب کیا۔ 7 گھنٹے کے دوران بار بار ایوان میں بد نظمی اور شور شرابہ ہوتا رہا۔ جی آخری بات کر لیں، جلدی کر لیں، جلدی کوئکلی کر لیں۔ کنکلوڈ کر لیں اعجاز صاحب، کنکلوڈ کر لیں۔
पी टी आई के मुनहरिफ रुकन इजाज सवाती की तकरीर के दौरान इस वक्त ऐवान कंट्रोल से बाहर हुआ जब इजाज खान ने बानी पी टी आई का नाम लिए बगैर कैदी नंबर 420 पुकारा। इस दौरान पी टी आई के हामी मुसलसल शोर करते रहे। सूबाई बुजरा शर्जील मेमन, सईद गनी और जिया लंजार ने कहा कि पी टी आई के अरकान कैदी 420 पर शोर क्यों करते हैं, उनका तो कैदी 804 है। ना अपनी फैमिली की परवाह, ना अपने अजीज रिश्तेदारों की परवाह, ना इस मुल्क की परवाह, सिर्फ एक धुन सवार है इनको कि किसी तरीके से वो चोर जो है वो निकल कर बाहर आ जाए। इसके अलावा इनकी जिंदगी का ना कोई मतलब है, ना कोई मकसद है। अगर उसने 420 कहा है सर, तो जो आपका ऑर्डर है तो आप वो 420 नहीं कहेगा, लेकिन 420 देखे वो तो 420 तो नहीं है ना, वो तो 804 है ना। और दूसरी बात ये कि इनका कैदी 804 है, उसने 420 का है। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद के फारूक दादा और जावेद लंगड़ा के जिक्र पर मुत्तहिदा पाकिस्तान के अरकान बरहम अल्फाज हदफ करने का मुतालबा किया। आप कराची के दावेदार हैं, आप कहते हैं हम कराची के वारिस हैं, आपने आवाज उठाई, आप कहते हैं आपने आवाज उठाई नहीं, लेकिन मोबाइल की ड्यूटी कम कर दीजिए। सोलर पैनल्स पर 18% ड्यूटी बढ़ा दी गई। क्या आपने सवाल उठाया? सिंध के बजट में कटौती की गई, आपने आवाज उठाई नहीं। आप कहते हैं कि हम सिंध के वासी हैं। एम क्यू एम की बिल्किस मुख्तार ने कहा कि कराची वालों को जहर दे दो। एम क्यू एम के नासिर कुरैशी की डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद से तलकलामी हुई। पीपल्स पार्टी की निदा खोड़ो, हीर सोहो और दीगर ने बजट पर मुफस्सिल बहस की। इजलास में अक्सर अरकान ने बजट के बजाय सियासी तकरीरें की। शाहजेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शोबा तालीम से खबर यह है कि 3 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का फैसला न हो सका। तकर्री 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर ही होगी। वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों के दोबारा इंटरव्यूज़ की तजवीज़। सेक्रेटरी बोर्ड ने नई समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। सिंध के 3 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का फैसला इल्तिवा का शिकार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन की तैनाती के लिए वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों के दोबारा इंटरव्यूज़ की तजवीज़ पेश। सेक्रेटरी बोर्ड्स ने वज़ीर आला सिंध को नई इंटरव्यू समरी कर दी है। चेयरमैन की तैनाती के लिए नया इश्तिहार देने के बजाय पुरानी वेटिंग लिस्ट पर गौर। चेयरमैन की तकर्री अब 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर मुमकिन होगी। चेयरमैन तकर्री कमेटी में चेयरपर्सन सिंध HEC, सेक्रेटरी कॉलेज और बोर्ड्स शामिल। नाजरीन बताते चलें कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के अफसर को तालिबात को हरासा करना महंगा पड़ गया। हरासगी साबित होने पर अब्दुर्रशीद मल्लाह को नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब्दुर्रशीद मल्लाह अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में तालिबा को हरासा करने का मामला। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के साबिक डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस और अकाउंटेंट मुलाजमत से फारिग बरतरफी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मिसकंडक्ट के इल्जामात पर बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर फाइनेंस के खिलाफ तालिबात ने हिरासा करने की शिकायत की थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात के बाद यह फैसला सामने आया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस हिकमत अमली। हाल ही में तामीर होने वाला औरंगी नाला जगह जगह से कचरा कुंडी में तब्दील। शहरी कहते हैं जब से नाला तामीर हुआ उसके अतराफ कचरा कुंडियों की सफाई ही नहीं की जाती, जिसके बाद सारी गंदगी नाले में जा गिरती है। तेज़ बारिश हुई तो कई आबादियाँ डूब जाएंगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। नाअहली या नाकिस हिकमत अमली। हाल ही में तामीर औरंगी नाला जगह जगह से कचरा कुंडी में तब्दील। नाला तामीर हुआ, इसके अतराफ कचरा कुंडियों की सफाई ही नहीं की जाती, जिसके बायस सारी गंदगी नाले में जा गिरती है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि तेज बारिश हुई तो कई आबादियां डूब जाएंगी। ये तो और कशीदगी हो जाती है, ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल गंदगी के साथ और बंद हो जाता है और ताकत हर जगह बीमारी फैलती है। कोई गंदे पानी खड़े हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो रहे होते हैं और यहाँ से गुजरना
मुश्किल हो जाता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुक्काम ने शहर भर के अमले को हुक्म दिया है कि वो बरसाती नालों के अतराफ कचरा कुंडियों का खात्मा करें, मगर 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद फैसले पर अमल न हुआ। औरंगी टाउन का मरकजी बरसाती नाला भी इसी गफलत का शिकार हो गया। टाउन के तमाम 16 सेक्टर्स को कवर करने वाले औरंगी नाले पर जाबजा कचरा कुंडियां कायम हैं। यहाँ तो हमारे इलाके में ये कचरा तो उठता ही नहीं है, सही है। इतनी बदबू आती है, यहाँ से लेडीज़ें जाती हैं, इतनी बदबू आती है, सफाई वफाई कुछ भी नहीं होता। यहाँ के टाउन नाजिम यूसी चेयरमैन पता नहीं कहाँ है। नाला ये बारिश हो तो पूरा जाम हो के ऊपर घरों में पानी आ जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि तवील अरसे से तैनात सिंध सॉलिड वेस्ट औरंगी टाउन के नाअहल अमले को तब्दील किया जाए, वरना मुमकिन बार रहमत शहरियों के लिए बाइस जहमत बन जाएगा। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाजरीन, बताते चलें कि कराची में डकैती और लूट मार का जन बेकाबू हो चुका है। 5.5 माह में शहर में 28,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी तक काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में जानिए। शहरी कायद में जुराइम का ग्राफ मुसलसल बुलंद, शहरी खौफ में मुब्तला लेकिन डाकू बेखौफ। सिटी 21 ने कराची में जनवरी से जून के वस्त तक होने वाली डकैती, चोरी और लूट मार की वारदातों का क्राइम डेटा हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक सिर्फ 5.5 माह में 28,610 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी में 5,822, फरवरी में 5,020 और मार्च में 5,702 वारदातें रिपोर्ट हुई। अप्रैल में 5,317, मई में 5,749, जबकि जून के सिर्फ 15 दिन में ही 2,500 से जायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इन वारदातों में मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, नकदी और दीगर कीमती सामान छीना गया। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 170 से जायद वारदातें होना इस बात का सबूत है कि शहर एक बार फिर जुराइम की लपेट में है। ताहम जुराइम पेशा अनासिर की सरकोबी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अख्तर, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करती बरसों से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात निपटाने में वाज़ेह पेशरफ्त सामने आई है। मुख्तलिफ बेंचेस ने सैकड़ों मुकदमात पर फैसले सुना दिए। तफसीलात मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट में जानिए। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम, इंसाफ की राह हमवार, बरसों पुराने केसेस अंजाम को पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर दी गई। सैकड़ों मुकदमात की समाअत और बड़ी तादाद में फैसले हो गए। 2 जून से मुख्तलिफ बेंचेस ने अहम सिविल, क्रिमिनल और अपीलों पर मुश्तमिल केसेस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इरफान सादित खान पर मुश्तमिल बेंच के सामने 148 मुकदमात पेश हुए, जिनमें से 22 निपटा दिए गए। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के बेंच ने भी 148 केसेस सुने और 54 पर फैसले सुना दिए। 3 रुकनी बेंच के सामने सबसे ज्यादा 639 केसेस पेश हुए, जिनमें से 532 केसेस निपटा दिए गए। उस बेंच की सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने की, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल थे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कराची रजिस्ट्री की ये पेशरफ्त अदालती निजाम पर बढ़ते बोझ को कम करने की मौसर कोशिश है। मुमताज, सिटी 21।